Hello everyone, welcome back to the video. So this is going to be the first video on chapter number 1 history, how, when and where. So basically in this chapter we are going to have a discussion regarding history and how time is important in history and how it is calculated. So basically history is more about change than just two kings fighting over a piece of land if you think about it. So, most of us think that history is all about fighting and war, but it is more than that. History इससे भी कई बढ़कर है. History has always been about the next evolution which leads to modernism, which we see now all around us. Indeed, history is about significant events such as wars between the two nations, battles between massive armies. Still, in truth, it is also about small things that completely change the world. So, हम ये कह सकते हैं कि इतिहास सिर्फ युद्ध लड़ाइयों का ही एक इनकी कहानी नहीं है जिसमें सिर्फ एक युद्ध भरे हुए हैं या लड़ाइयाँ भरी हुई हैं किसी देश के बीच में, किसी राज्यों के बीच में. हिस्ट्री एक ऐसी उत्पत्ति है जिसने हमें मॉडर्नाइजेशन की ओर ढकेला, जो हमें एक नए सोसाइटी, एक नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराता है. हिस्ट्री इज़ समथिंग जिसने हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और वर्ड को भी. लाइक द व्हील्स इन्वेंशन, जैसे कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, इट वॉज नॉट अ बिग डील बैक देन एज मोस्ट पीपल डोंट नो वॉट टू डू विथ इट. So basically when the wheel was invented, no people were aware with the use of wheel. Wheel के उपयोग से बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे. बट जब व्हील डेवलप हुआ उसके बाद उसके जो फ़ायदे हुए वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुए. सो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट changes that has took place in the past and how it is affecting our present. वो changes जो past में हुए और हमारे present पर असर डाल रहे हैं वो इतिहास है. इतिहास से वॉर या बैटल तक ही लिमिटेड नहीं है. जस्ट लाइक इन 21st century we can't think our life without wheels, which was invented around thousands and thousands of years ago, but that time people were not so much aware with its uses. But now we cannot think our life without wheels. It has become an inevitable part of our everyday life. So today we will be showing you how history is important and why, and how you need to study it based on the events that have happened. History क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से ज़रूरी है और किस तरीके से जो इवेंट्स हुए हैं उनको आपको स्टडी करना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट. इस पर हम डिस्कशन करेंगे. एंड इवन दिस चैप्टर नंबर 1 इज़ क्वाइट अ यूनिक चैप्टर as it puts a light on history as a whole and does not focus on a single event that happened to occur in that time, because sometimes it happens or we mostly think that history is all about certain kind of battle or war or certain incident that took place in the past. But in this video and in this chapter we are not going to study any single event. Instead, we will take history as a whole and we'll have a discussion on how dates were evaluated and how it is evolved with the passes of time. हम इस चैप्टर में सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि किसी दो राज्यों के या देश के बीच किस तरीके से वॉर या युद्ध हुए, या फिर किसी पर्टिकुलर राजा या महाराजा या मुगल्स की कहानी को नहीं पढ़ेंगे हम, बल्कि हम पूरे इतिहास को एक करके समझेंगे कि इतिहास की शुरुआत कब और कैसे हुई, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किस तरीके से किन किन कैटेगरीज में इनको बांटा गया है. प्लस हम ये जानेंगे कि ये जो पीरियडाइजेशन किए गए इतिहास में ये कितने सक्सेसफुल हुए और कितने तरीके से किए गए. सो ऑल दीज थिंग्स इज़ द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. हाउ, व्हेन एंड वेयर. सो माय डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री gives a sense of continuation by means of days, periods and eras. But a date isn't the only thing that establishes a connection between the past and the present. So basically history क्या है, हमें एक dates, periods और eras के बारे में बताता है कि कब कब कौन सी घटनाएं हुई होंगी. लेकिन हिस्ट्री सिर्फ इन तारीखों तक ही सीमित नहीं है.
It establishes a connection between the past and present. पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके बीच एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम भी हिस्ट्री करती है. वी नीड रिलेवेंस एंड दैट रिलेवेंस इज इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ एंड वेयर. हमें एक रिलेवेंस की आवश्यकता होती है अपने पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए, और वो रिलेवेंस हमें इतिहास से मिलता है इस नॉलेज को जानने के बाद कि क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें कब और कैसे हुई. So this is all about this chapter, and this chapter is about these three pillars of how, when and where. तो ये चैप्टर जो है इतिहास के इन्हीं 3 खंभों पर, 3 पिलर्स पर आधारित है, जिसमें आप ये समझेंगे कि हाउ, कोई भी चीज़ें कैसे हुई, when यानी कि कब हुई, and where यानी कहाँ हुई. So these 3 questions and these 3 things will help us to get to know about how history was evaluated, how history was developed, and how different people divided the history according to their own perception. कैसे लोगों ने अपने अपने समझ के हिसाब से इतिहास को विभाजित किया, डिवाइड किया अपने अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पर. वो कितने हद तक सक्सेसफुल रहा और नहीं रहा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, तारीखें कितनी ज़रूरी हैं. There was a time when historians were fascinated with dates. एक समय था जब इतिहासकार डेट्स को लेकर बहुत ही फैसिनेटेड हुआ करते थे, बहुत ही आकर्षित रहते थे उसको लेकर. एंड देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट. और एक समय था कि उस पर बहुत विवाद या बहस छिड़ी रहा करती थी कि कौन सा रूलर कब राजगद्दी पर बैठा, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया. इनके तारीखों पर बहुत से डिबेट्स हुआ करते थे, वाद विवाद हुआ करता था. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि पहले के जो इतिहासकार रहे या पहले के जो लोग भी रहे, उन्होंने इतिहास को हमेशा डेट्स से कनेक्ट करके देखा. ये तारीखें जो थी ये सिनोनिम्स थी हिस्ट्री की. मीन्स दीज वर, हम जैसे पर्यायवाची पढ़ते हैं तो इतिहास का पर्यायवाची था तारीखें. यानी लोगों का मानना था कि तारीखें ही इतिहास हैं, इतिहासों में तारीखें दी गई हैं. यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. इज सच अ कंसेप्शन ट्रू. आपने सुना होगा लोगों को अक्सर बात करते हुए कि हिस्ट्री तो सिर्फ तारीखों के बारे में है और तारीखें याद करना बहुत बोरिंग होता है. तो क्या आप भी यही सोचते हैं, आपका भी यही मानना है कि सिर्फ इस हिस्ट्री जो है वो तारीखों पर ही आधारित है? क्या ये मानना, ये कंसेप्शन सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हिस्ट्री उन चेंजेस के बारे में है जो समय के साथ साथ हुए हैं. वो बदलाव जो विद द पासेस ऑफ टाइम दैट हैज़ टुक प्लेस. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट सच काइंड ऑफ चेंजेस. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इतिहास इन चीज़ों का पता लगाने के बारे में है कि इतिहास में, पास्ट में कौन सी चीज़ें कैसे रही होंगी और कैसे कैसे समय के साथ वो बदली हैं. इन चीज़ों का पता लगाना, इनके बारे में पढ़ना और जानकारी हासिल करना इतिहास है. पास्ट में क्या हुआ, कैसे वो बदलते हुए प्रेजेंट तक आया, दिस इज़ अबाउट हिस्ट्री. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. हाँ, ऐसा होता है कि जब कभी भी हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे, भूतकाल की वर्तमान काल से तुलना करेंगे, तो हम डेट्स पर ज़रूर आएंगे, हम तारीखों के बारे में बात करेंगे. हम बिफोर और आफ्टर कह सकते हैं कि पहले ये हुआ करता था, अब ये होता है. सो दीज आर सम कॉमन टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड while comparing the past and present. ये कुछ ऐसे शब्द हैं like before and after जिनका हम अक्सर यूज़ करते हैं past और present को compare करने के लिए. And living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. So basically it happens that no doubt as we are living in this world and we are surrounded with different kind of things around us, but we never used to ask questions that how these things get developed.
हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं और अपने चारों ओर बहुत प्रकार की चीज़ों से घिरे हुए हैं, बट कभी हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश नहीं की कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, ये इवोल्यूट कहाँ से हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे और कब हुई। वी जनरली टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। ऐसा मानते हैं जैसे कि जो भी चीज़ें हम आज देख रहे हैं ये बरसों से सदियों से ऐसे ही रही होंगी दुनिया में। बहुत से लोग आए, इनका इन्होंने इस्तेमाल किया और अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी सोच के साथ हम अक्सर चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं और ये नहीं जानने की कोशिश करते कि इनका डेवलपमेंट, डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन कब और कैसे हुआ। ये हमेशा से एग्जिस्ट करती थी या किसी की देन है, किसी की मेहनत का नतीजा है, किसी के प्रयास का नतीजा है कि कुछ चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही हैं। Most of us have our moments of wonder when we are curious and when we ask questions that actually are historical. हम ये सब जानकर वाकई बहुत चकित हो जाएंगे अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की जो एक उत्तेजना होती है अगर हमारे अंदर वो है और हम पता लगाना शुरू करें तो हम आश्चर्य से भर जाएंगे इन चीज़ों को जानकर, इतिहास को समझकर कि कौन सी चीज़ें कब कब और किस तरीके से डेवलप हुई। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee? कभी अगर आप ध्यान से देखें और अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें तो हर एक छोटी छोटी चीज़ आपके मन में हिस्ट्री को लेके बहुत से क्वेश्चंस पैदा कर सकती है। हर एक माइनर सी एक्टिविटी आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि ये चीज़ें कब डेवलप हुई होंगी, किस तरीके से इनका इन्वेंशन हुआ होगा, कौन सी चीज़ें कब कहाँ से किस वक्त किसने लेकर आई होंगी। ये बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर क्यूरियस। तब जब हम क्यूरियस हों इतिहास को जानने के लिए, हमारे अंदर उसको जानने की एक उत्तेजना हो, एक शौक़ हो, तो हम उसको समझ पाएंगे। जैसे कि एक रोड साइड पे एक छोटा सा टी स्टॉल होता है, अक्सर सड़क के किनारे आप देखते हैं लोग बैठकर वहाँ चाय पी रहे होते हैं। तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा, चाय है, कॉफ़ी है, ये लोगों ने कब पीना शुरू किया होगा, इसका टेस्ट कैसे उन्होंने समझा होगा, कौन था जो चाय और कॉफ़ी को लेकर आया होगा। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? ट्रेन में कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके विंडो पर बैठकर कभी आप ये सोचिए कि आज जो एक लॉन्ग डिस्टेंस इतने शॉर्ट डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, यानी एक दूरी अब दूरियां नहीं लगती हैं, कारण है रेलवेज़ का। तो ये रेलवेज़ कब बने होंगे, किस तरीके से ये डेवलप हुए होंगे, रेलवेज़ का कौन सा एज रहा होगा और किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ कि लोगों को लंबी दूरी तय करना अब काफ़ी आसान हो गया। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper begins to be printed. And again, if you are having curiosity in your mind, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जो आपके घर में मॉर्निंग को न्यूज़पेपर आता है, आज तो आप घर बैठे न्यूज़ को देख लेते हैं, जान लेते हैं, एंड इवन यू आर हैविंग टेलीविज़न एट योर होम, तो आप इन सब से न्यूज़ को देख और सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट उन लोगों का क्या, जब और उस समय का क्या जब न्यूज़पेपर या टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, हाउ पीपल वर एबल टू गेट टू नो अबाउट न्यूज़ ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तब लोगों को अलग अलग स्थानों की, जगहों की जानकारियाँ, खबरें किस तरीके से मिला करती होंगी। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर द रिजल्ट ऑफ curiosity, eagerness and anxiousness. So if somebody is anxious, eager, अगर कोई व्यक्ति उत्सुक है, जिज्ञासु है जानने के लिए, तो उसके माइंड में हर एक इवेंट को देखकर सवाल उठ सकते हैं और यही सवाल उसको फिर इतिहास की ओर लेकर चलेंगे, उसको ये पता लगाने में मदद करेंगे कि हर एक चीज़ की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, कैसे हुई, किस तरीके से वो एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता हुआ एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा होगा, किस तरीके से लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, हाउ पीपल रिएक्टेड टूवर्ड्स इट एंड सो मैनी सच थिंग्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, ईगरनेस है, आप जानने को उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, आपके अंदर वो उत्तेजना है, तो आप
हर एक इवेंट में एक सवाल पैदा कर सकते हैं और हर एक सवाल का आंसर आपको इतिहास की ओर ले जाएगा. सो बाय दिस वी कैन conclude दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विद लर्निंग दोज बोरिंग डेट्स. इतिहास सिर्फ उन बोरिंग डेट्स को याद करने तक सीमित नहीं है. इसमें बहुत सी ऐसी इवेंट्स और बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमें इंटरेस्टिंग तो लगेंगे, उसके साथ साथ वो हमें मदद करेंगे हमारे प्रेजेंट को भी समझने में. Now let's have a look at the picture which is given, that is figure number 1, in which it is showing Brahmins offering the Shastras to Britannia. Front piece to the first map produced by James Rennell in 1782. So James Rennell was an English geographer, historian and a pioneer of oceanography, and he has produced some of the first accurate maps of Bengal and even that of India also. Rennell constructed the first nearly accurate map of India and published a Bengal Atlas, a work important for British strategic and administrative interest. So हम कह सकते हैं रेनल एक बहुत बड़े जियोग्राफर थे, हिस्टोरियन भी थे और ओशनोग्राफी के पॉइनियर भी थे, और इन्हीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा मैप तैयार करने को. इन्होंने पहला लगभग एक्यूरेट भारत का मिलता जुलता नक्शा तैयार किया था और इन्होंने बंगाल एटलस भी पब्लिश किया. ये सारे वर्क ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को तैयार करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट को भी मजबूत करने के लिए, भारत के प्रशासन पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए मैप्स वर टू यूज़फुल फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए ये नक्शे बहुत ही यूज़फुल रहे. इस पिक्चर में उन्हीं नक्शों में से जो पहला वर्जन डेवलप किया था, इन्होंने प्रोड्यूस किया था 1782 में, यहाँ पर दिखाया गया कि जो ब्राह्मण्स हैं, भारत में ब्राह्मणों को पूजा जाता है, ब्राह्मणों को ही शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो शास्त्र लिखते और पढ़ते भी हैं. और यहाँ पर दिखाया गया कि ब्राह्मण किस तरीके से शास्त्र दे रहे हैं ब्रिटानिया को. ब्रिटानिया जैसे आपके यहाँ, आप भारत में रहते हैं, तो भारत की पावर को दिखाते हुए हम भारत को एक फीमेल फिगर के रूप में कंपेयर करते हुए, एक एलिगरी देते हुए भारत माता कहते हैं, जो कि भारत की शक्ति को दिखाता है, विच इज़ द सिंबल ऑफ इंडियन पावर. उसी तरह से ब्रिटानिया जो है ये ब्रिटिश पावर का सिंबल है, ये ब्रिटिश की ताकत और उनकी शक्ति को दिखाता है. जैसे हम एक फीमेल फिगर देकर अपने नेशन को पूजते हैं, इन द सेम वे ब्रिटानिया वॉज द फीमेल एलिगरी और फीमेल फिगर ऑफ ब्रिटेन. एंड यहाँ पे ब्राह्मण्स उन्हीं को शास्त्र ऑफर करते हुए दिखाए गए हैं. रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान. रेनल से रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि वो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करें. एंड enthusiastic supporter of British conquest of India, Rennell saw preparation of maps and essential to the process of domination. So जेम्स रेनल, जो कि खुद ब्रिटिश के बहुत ही enthusiastic सपोर्टर थे और उनको इस बात की बहुत खुशी और गर्व भी था कि किस तरीके से ब्रिटेन ने पूरे इंडिया पर अपना कब्ज़ा कर लिया है. तो जब इन्हें ये ऑर्डर दिया गया, उनसे कहा गया मैप तैयार करने के लिए, तो वो उन्होंने बहुत खुशी मैप बनाना शुरू कर दिया, बनाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि मैप बनाकर इस तरीके से जो ब्रिटेन का डोमिनेशन है, प्रभुत्व है भारत पर, उसको और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है. सो ही गेट इंस्टेंटली रेडी टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया. द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिया. इट मीन्स कि इस पिक्चर में ये दिखाया गया कि किस तरीके से इंडियंस खुद अपने इच्छा से वो अपने सारे सेक्रेड टेक्स्ट को, एंशिएंट टेक्स्ट यानी कि जो भी लेख हैं, लिखावटें हैं भारत की, वो ब्रिटानिया को हैंड ओवर कर रहे हैं, एज इफ़ वो चाहते हैं कि इंडियन कल्चर की जो रक्षा है अब ब्रिटानिया करे या ब्रिटेन करे. तो वो अपनी इच्छा से ये इसको हैंड ओवर कर रहे हैं, एज इफ़ वो कह रहे हों कि प्लीज़ बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर. भारतीय संस्कृति के प्रोटेक्टर बन जाएं आप, भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, इसके प्रोटेक्टर बन जाएं आप. इसलिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट हैंड ओवर कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अब भारतीय संस्कृति आपके हाथ में है. तो इस तरीके की एक पिक्चर ड्रॉ की गई कि यहाँ पे ब्राह्मण्स को ऑफ़र करते हुए दिखाया गया कि ब्राह्मण्स आए हुए हैं
ब्रिटानिया एक टॉप पोजीशन पर खड़ी हैं एंड ब्राह्मण्स आर स्टैंडिंग बिलो दैट एंड दे आर ऑफरिंग ऑल द सेक्रेड टेक्स्ट टू ब्रिटानिया जस्ट टू show their complete devotion and rendering towards the British government. And this is what they are trying to show through this picture. Now let's get move back to the topic in which we were having questions like evolution of railways, introduction of tea and coffee. So all such historical questions refer us back to notions of time. जब कभी भी हम इस तरह के इतिहासकार सवाल करेंगे तो वो हमें समय में और पीछे लेकर जाएगा और बहुत सी चीज़ों को पता लगाने में मदद करेगा. बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ. लेकिन ये जो टाइम है ये हमेशा किसी पर्टिकुलर डेट, टाइम और मंथ तक लिमिटेड नहीं हो सकता. मीन्स वॉट एवर had happened in the past, we cannot determine or we cannot predict the exact date or month of that event. पास्ट में, इतिहास में क्या हुआ, कब हुआ, उसका हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट उसका एक पर्टिकुलर कौन सा साल रहा होगा, कौन सा मंथ रहा होगा, हर वक्त इसका एकदम सटीक अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है. दिस इज़ नॉट प्रिसाइजली पॉसिबल एवरी टाइम, as sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कई बार ये सही नहीं होगा कि पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हो सकता है वो एक लंबे वक्त तक चली हो, और एक लंबे वक्त तक चलने वाले प्रोसेस को हम एग्जैक्ट लिमिटेड डेट में बांध नहीं सकते, उसकी एक फिक्स डेट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो इनकरेक्ट हो जाएगा. दैट विल नॉट गिव अस द ट्रू पिक्चर ऑफ हिस्ट्री. वो हमें इतिहास की फिर सही जानकारी नहीं दे सकेगा. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. कोई एक दिन आप नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर दिन और तारीख को भारत के लोगों ने चाय पीना शुरू किया होगा. दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम. चाय के प्रति अपना स्वाद, अपनी पसंद को डेवलप करने में भारतीयों को भी लंबा वक्त लगा होगा. पहला समय रहा होगा जब भारत में चाय आई होगी, उसके बाद भारत के कुछ लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो चाय ऑफ़र की गई होगी, और फिर धीरे धीरे किस तरीके से वो पूरे इंडियन सोसाइटी में फैली होगी. एंड देन लेटर ऑन हाउ पीपल स्टार्टेड यूजिंग टी, व्हाट वर द प्रोसीजर्स और द मेथड्स इन विच दे वर मेकिंग देयर टीज़. ये एक लंबा प्रोसीजर रहा होगा, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस रहा होगा, और हम एक दिन इसका डिफाइन नहीं कर सकते कि दैट दिस इज़ द पर्टिकुलर डे इन विच पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड हैविंग टी और कॉफ़ी. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस. ऐसी होने वाली कोई भी घटनाएं जो लंबे प्रोसेस के बाद उनकी उत्पत्ति हुई, इसके लिए कोई एक प्रिसाइज डेट तय करना, एक निश्चित तारीख को सेट कर देना संभव नहीं है. इस तरीके से इतिहास का सही पता नहीं लगाया जा सकेगा. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड. इसी तरीके से एक निश्चित तारीख हम नहीं फिक्स कर सकते कि इस दिन इस तारीख को ब्रिटिशर्स का भारत पर शासन हुआ था या ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ. और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड. हम कोई एक तारीख नहीं दे सकते कि किस वक्त किस दिन राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए होंगे और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकॉनमी एंड सोसाइटी, या फिर किस पर्टिकुलर डेट को भारतीय समाज में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आए होंगे, क्योंकि हर एक घटना को घटित होने में एक लंबा प्रोसेस लगता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है. एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द बिगनिंग धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, डेवलपमेंट होते हैं, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स बढ़ती हैं, एंड दैट्स हाउ सम इंसिडेंट वुड टुक प्लेस. और इस तरीके से अंत में जाके कोई घटना घटित होती है. तो उसके पहले के जो होने वाले प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और किसी एक सर्टेन डेट को फिक्स करके किसी भी इवेंट को बांधा नहीं जा सकता है. कई बार कोई घटनाएं एक निश्चित दिन पे होने के बजाय एक लंबे वक्त से चले आ रहे प्रोसेस का रिजल्ट होती हैं. सो वी कैन नॉट गिव एनी सिंगल और एग्जैक्ट डे, डेट और ईयर टू एनी इंसिडेंट. ठीक है.
As all these things happened over a stretch of time, एक टाइम पीरियड रहा होगा, एक पूरा दौर रहा होगा, कोई एक सिंगल तारीख या दिन नहीं कह सकते. वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम. हम सिर्फ कार्यकाल कह सकते हैं या एक काल चक्र कह सकते हैं उसको, बट एक अप्रॉक्सीमेट, एक एग्जैक्ट प्रिसाइज तारीख तय करना वुड नॉट बी गुड. सो इट वुड बी बेटर टू हैव अ स्टडी ऑन द स्पैन ऑफ टाइम. एक समय सीमा, एक समय अवधि या एक समय का चक्र जो है, उसमें हम किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं. हर वक्त हर इंसिडेंट का एग्जैक्ट डेट पॉसिबल नहीं हो पाता पता लगाना या उसको एग्जैक्ट डेट में बांध देना, क्योंकि कई घटनाएं एक दिन में नहीं होती. वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. तब हम क्यों हर वक्त इतिहास को तारीखों से जोड़ते हैं. हम क्यों कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ सो बोरिंग बिकॉज इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद डेट्स. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. ये जो हम हिस्ट्री को डेट से एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं अक्सर, इसका भी एक कारण है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. एक समय था, एक दौर था जब इतिहास में सिर्फ या तो युद्ध की बातें, बड़ी बड़ी घटनाओं की बातें हुआ करती थी. इट वॉज अबाउट रूलर्स के बारे में था इतिहास, एंड देयर पॉलिसीज़, और उनकी क्या क्या नीतियाँ रहीं उनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते थे. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड. इतिहासकारों ने उन तारीखों के बारे में लिखा है जब कोई व्यक्ति राजा बनता था, जब राजा की ताजपोशी होती थी. द ईयर्स ही मैरिड, किस वर्ष में किन राजाओं की शादियाँ हुई. द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, किस वर्ष उस राजा को बच्चे हुए होंगे. द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर वॉर, किस वर्ष में उस राजा ने किसी युद्ध को लड़ा. एंड द ईयर ही डाइड, और किस वर्ष में उस राजा की मृत्यु हुई. ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको इतिहासकारों ने हमेशा लाइमलाइट में रखा, जिस पर मेन फोकस किया और जिसको हमेशा से इतिहास में लिखा. एंड द ईयर नेक्स्ट द रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और उन्होंने ये भी लिखा कि उस राजा के मौत के बाद अगला शासक कौन आया, किस वर्ष आया. इन चीज़ों के बारे में भी ईयर्स के टर्म में ही मेंशन किया गया. फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड. इस तरह के कुछ इवेंट्स जिसमें किसी को राजा बनाया गया, किसी के बच्चे हुए, किसी की शादियाँ हुई, किसी की मृत्यु हुई, किसी और व्यक्ति को राजा बनाया गया, इन इवेंट्स को एक तारीख में, एक दिन में बांधा जा सकता है, क्योंकि दीज आर सच इवेंट्स विच कैन टेक प्लेस ओनली इन जस्ट अ सिंगल डे, जो किसी एक सिंगल डे पर ही हो सकते हैं. शादी एक दिन का प्रोसेस है, राजा बनना एक दिन का प्रोसेस है, युद्ध भी 1 से 2 दिन या 3 दिन चलते हैं, या फिर जितने भी दिन चले किसी एक पर्टिकुलर दिन पर स्टार्ट होते हैं. तो ये सारे प्रोसेसेस को, इन इवेंट्स को कुछ स्पेसिफिक डेट्स में बांधा जा सकता है, स्पेसिफिक डेट्स में डिटरमाइन किया जा सकता है. एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट. और इसीलिए है इतिहास में तारीखों को लेकर हमेशा से डिबेट्स होती रही हैं और अभी भी चल रही हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण भी है. कारण ये है क्योंकि जब डिबेट्स होंगे तो सही डेट्स भी निकल कर सामने आएंगे. As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and the other questions. So in compare to the early historians, now historians have started mentioning about other issues. They started raising other questions. अब के इतिहासकारों ने और मुद्दों पर भी फोकस करना शुरू किया है और बातों को भी मेंशन करना शुरू किया है. एंड वेरियस फैक्ट्स रिलेटेड विद द ह्यूमन्स लाइफ दे नाउ स्टार्टेड मेंशनिंग इन देयर टेक्स्ट बुक्स. आपने ग्रेड 6 और 7 में पढ़ा, आप आगे भी पढ़ेंगे कि अब सिर्फ हिस्ट्री जो है वो सिर्फ कुछ डेट्स को याद करने तक सीमित नहीं है. दीज हिस्टोरियंस नाउ they look at how people earn their livelihood. They have mentioned about the process of earning livelihood of the early people. पहले के लोग आमदनी कैसे करते थे, उनकी जीविका किस तरीके से चलती थी, इन्होंने इस पर भी फोकस किया. इसके बारे में भी मेंशन किया. What they produce and ate, लोग क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या उगाते थे, क्या खाते थे, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है.
हाउ सिटीज़ डेवलप, कैसे शहरों की उत्पत्ति हुई, शहरों का निर्माण हुआ, इनका विकास हुआ. एंड मार्केट्स केम अप, कैसे नए नए बाज़ार और उसमें उपलब्ध होने वाली अलग अलग वस्तुएं आईं. हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कैसे नए नए साम्राज्यों का गठन किया गया. हाउ न्यू आइडियाज़ स्प्रेड, कैसे नए विचारधाराएं, नए ओपिनियंस, नए आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हुए. एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, कैसे संस्कृति और समाज में परिवर्तन आया. इन बातों पर भी हिस्टोरियंस ने अब फोकस किया है, उसको भी मेंशन किया है. आपके जो पास्ट 2 ईयर्स के बुक थे उसमें भी आपने पढ़ा होगा, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, आपने मौर्यन एम्पायर पढ़ा, एंड देयर वर सो मैनी अदर चैप्टर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स. और हर एक इवेंट्स में आपने उस वक्त की सोसाइटी के बारे में भी जाना, उनका समाज कैसे था, किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था, जिसमें आपने ब्रॉन्ज एज पढ़ा, आयरन एज पढ़ा, स्टोन एज पढ़ा. तो ये जो एजेस हैं इसके माध्यम से हम ये जान सके कि अलग अलग काल में किन वस्तुओं का, किन मेटल्स का, किन पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा होगा. सो हिस्ट्री नाउअडेज इज़ नॉट ओनली लिमिटेड विद द डेट्स, वी कैन से इट. हम इसे ये कह सकते हैं कि इतिहास अब सिर्फ तारीखों तक ही सीमित नहीं है. इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको जानने और समझने से हम अपने फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में एक तालमेल बना सकेंगे. हिस्ट्री इज़ समथिंग दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड क्रिएट फ्यूचर. इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर प्रेजेंट and to create your future as well. Now let's have a look at the picture. This is figure number 2, as this picture is showing an advertisement of a tea brand named Lipton's. This advertisement is different from that flashy and luminant advertisement that you can see on your television screen. ये उन प्रचारों से अलग है. यहाँ पर एक लिप्टन ब्रांड की टी है, उसका एडवर्टीज़मेंट करते हुए दिखाया गया. दिस इज़ एन ओल्ड एडवर्टीज़मेंट एंड वाई इट हैज़ बीन गिवन इन द बुक. इट हैज़ बीन गिवन बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट. ये हमें बाज़ारों की जानकारी देगा. इट विल टेल अस लाइक हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड. जब कभी कोई नया प्रोडक्ट बाज़ार में आता था तो उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से होता रहा होगा, किस तरीके से उस प्रोडक्ट का मार्केट तैयार किया जाता होगा. एंड हाउ न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज, किस तरीके से नया स्वाद, नए चीज़ें पॉपुलर की जाती थी थ्रू एडवर्टीज़मेंट. सो दिस इज़ एन एडवर्टीज़मेंट फ्रॉम द ईयर 1922 in which Lipton brand is advertising their tea through a royal figure. The Lipton tea suggests that royalty all over the world is associated with this tea. उन्होंने एक रॉयल फिगर को दिखाते हुए इस टी को एडवर्टाइज़ किया है. ये दिखाया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी रॉयल फैमिलीज़ हैं, जो भी शाही लोग हैं, शाही घराने के हैं, वो भी यही चाय पिया करते हैं. इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस. इस पिक्चर के बैकग्राउंड में एक इंडियन पैलेस को दिखाया गया है, उसकी बाहर की दीवारें हैं और इसके जस्ट सामने इन द फोरग्राउंड सीटेड ऑन हॉर्स बैक इज़ द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जो तीसरा बेटा था, उनके जो तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर हैं, उनको इस पैलेस के फ्रंट में हॉर्स बैक पर बैठा हुआ दिखाया गया. हु वॉज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कैनॉट, जिनको ड्यूक ऑफ कैनॉट की उपाधि यानी कैनॉट के नवाब की उपाधि दी गई थी, उनको एक हॉर्स बैक पर बैठाया हुआ इस टी के फ्रंट लेबल पर दिखाया गया और पीछे इंडियन पैलेस को दिखाया गया. सो यूजिंग ऑल दीज रॉयल सिम्बल्स एंड रॉयल फिगर्स वॉज द मेन इंटेंशन टू पॉपुलराइज देयर ब्रांड. अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, जस्ट बिकॉज रॉयल फैमिलीज आर कंज्यूमिंग दिस. ये मेथड यूज़ किया जाता था उस वक्त. So by such kind of paintings, pictures and some clips of advertisement, we can get to know about the society of that period. उस वक्त की क्या सोसाइटी रही होगी, कैसे चीज़ों को एडवर्टाइज़ किया जाता, मैप्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, सोसाइटी में स्टेटस किस तरीके के थे, हाउ पीपल्स वर ट्रीटेड.
These things can be understood through such pictures. इस तरह के पिक्चर्स और एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से हम पास्ट का इतिहास का पता लगा सकते हैं. लाइक इन दिस वे, यहाँ पर जैसे दिखाया गया कि रॉयल फिगर्स को यूज़ किया गया था और रॉयल सिम्बल्स लाइक दिस पैलेस, इनको यूज़ किया गया अपने एडवर्टीजमेंट में, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोडक्ट. So this was a technique that can be opted for the advertisement, and we can get to know various such other techniques through various pictures and the newspaper clippings and the reports or the letters that has found regarding the past. जो इतिहास से जुड़े हुए हमें मिले हैं उनसे हम और पता लगा सकते हैं. So this is enough for today's class. We'll meet in the next video with the new topic in which we will discuss about dates and further things. Till then, do take care of yourself, and thank you so much everyone.